Two things you must know while learning English language. Hello, everybody. Good to see you again. It's been a long time. I've not been on social media. There are certain reasons. I was really busy with my schedule, the classroom, face-to-face classroom schedule. I could not continue on my social media. So those of you who don't know me, my name is Yunus. I'm a certified teacher for teaching English as a second language. So in this video, I'm going to talk about two important things that you must know before learning English language. Number one, just remember this point, it's practice. I always say practice is really important for learning anything. What reminds me right now is that practice makes perfect. But we cannot say practice makes a man perfect. Practice makes perfect because there's woman also. And really, you just believe this thing. Believe me that if I say practice is important, it is really important. It's not me only who says practice is important. Everyone says, every trainer says that practice is important. But now, it's a big question, how to practice. Let's see. So number one thing, as I mentioned, practice. We have different ways to practice, but there should be a proper schedule for your practice. Every day you choose at least 30 minutes. I would strongly recommend you 30 minutes every day because 30 minutes are ample to practice to make your English more beautiful and to improve your English day by day. अगर फॉर एग्जांपल हम प्रैक्टिस की बात करते हैं, आई एम स्विचिंग टू उर्दू लैंग्वेज जस्ट बिकॉज मोर पीपल it will be convenient to more people to understand me really, because I have seen people who are not just able to understand the things. I really get comments as well as calls from the people who every day say that we're not able to understand your English. It's not, I just go with easy words. I do not, and I speak so slowly. I don't want myself speed up all the time because, as you know, I can never be a good communicator, and nobody even can be a good communicator whosoever else speaks so fast. So the practice, as I mentioned, more than 2 to 3 times, do practice every day for 30 minutes. 30 minutes are enough. 30 minutes are enough. So अगर आप मेरी बात करोगे मैंने कैसे सीखा या बड़े बड़े इंग्लिश स्पीकर्स कैसे सीखते हैं, हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड ज़रूरी करना है कि हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं, हम स्कूल से अभी तक 10th पढ़ के आए, हम स्कूल से अभी तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ के आए हैं, 18 years, 20 years, 30 years, फिर कॉलेज आप मूव हो गए, इसके बाद यूनिवर्सिटी चले गए. तो आपने आज तक बिगिनिंग से, आई मीन से फ्रॉम द बिगिनिंग, फर्स्ट स्टैंडर्ड से, आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से आज तक, चाहे आप 18 years हो, चाहे आप 20 years हो, चाहे आप छोटे बच्चे भी हो, तब भी आपने 10 साल से ज़्यादा स्कूल में स्पेंड किए होंगे. और इन 10 सालों में आपने क्या किया, आप वन वे ट्रैफिक चलता रहा, जैसे कि आप वन वे हर एक चीज़ लेते रहे. स्कूल्स में टीचर्स ने इंग्लिश में पढ़ाया, बुक्स भी इंग्लिश में हैं और हर एक चीज़ इंग्लिश में ही है. लेकिन ये बड़ा सा क्वेश्चन बनता है कि सर बोलना क्यों नहीं आता है. इसमें यही रीज़न है, जब हम किसी चीज़ को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस में नहीं डालेंगे, यू विल नेवर बी एबल टू स्पीक इट आउट. आप कभी इसको बोल नहीं पाओगे क्योंकि प्रैक्टिस से ही सारा चीज़ होता है. आपको मैं थोड़ी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. इफ़ आई एम गोना टॉक अबाउट द टेंसेस, अगर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करूँ, जो कि एक मुझे लगता है एक वाहिद एक इम्पोर्टेंट टेंस है, इतना इम्पोर्टेंट टेंस है और कंफ्यूजिंग भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करें, कहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करें. सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर बात करें, ये बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है और हमें अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जो भी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं और वो स्टूडेंट्स भी जो बहुत सारी जगहों से सीख रहे हैं, वो भी यही क्लेम करते हैं कि मुझे सिंगुलर सब्जेक्ट से आप प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ कैसे क्या वर्ब लगाना है. जैसे मैं आपको बताऊं, मैं बता सकता हूं ही गो टू स्कूल. मैंने एक सिंपल सेंटेंस बोला, ही गो टू स्कूल. आई मस्ट नो व्हाट्स द ईएस फॉर्म ऑफ वर्ब, जो हम वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ
लगाते हैं। ऐसे ही हम तो राइटिंग में ये चीज़ें करते हैं, हम सोचते भी सही है, हम कभी ये भी सोचते हैं कि नहीं, मैंने जो राइटिंग में यहाँ पे ये चीज़ करना है, मेरे पास टाइम भी है और मैं इस चीज़ को आराम से लिख पाऊँ, क्योंकि वो तो अलग कहानी है, राइटिंग की बिल्कुल अलग कहानी है। राइटिंग में हमारे पास टाइम होता है सोचने के लिए, लेकिन स्पीकिंग इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में ये चीज़ें कभी नहीं होती है। स्पोकन इंग्लिश में हमें टाइम ही नहीं होता है जब हम किसी से बात करते हैं या किसी से कोई भी चीज़ शेयर करते हैं। तो इसमें ये चीज़ हमें ध्यान रखना होता है, हमें प्रैक्टिस किस वे में करना है। पहले अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को सही करो, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस से ये चीज़ क्लियर होता है कि आप कभी गलत नहीं करते हो। पहली बात यह है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, दिस, दैट, आई, वी, यू, दे, अगर सब्जेक्ट्स की बात करें, वहाँ पे हमें ये चीज़ पता होता है जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ एस, एस एंड आई एस फॉर्म का यूज़ हमें करना होता है, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जो कि हमें क्लियरली डिफाइन करता है कि हम डेली रूटीन की बात करते हैं, हम इसमें डेली रूटीन मेंशन करते हैं, हम इसमें ट्रू स्टेटमेंट्स मेंशन करते हैं, हम इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज मेंशन करते हैं, हम कभी इसमें रिक्वेस्ट्स एंड कमांड्स मेंशन करते हैं, हम इसमें कभी हैबिचुअल प्रेजेंट हैबिट्स जो है वो बयान करते हैं, जैसे कि आई गो टू स्कूल, इसका मतलब है मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। एक बच्चे को ये पता होना चाहिए आई गो टू स्कूल का मतलब, आई गो टू स्कूल का मतलब होता है कि मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, मगर ये मैं रोज़ जाता हूँ। ऐसे ही कितनी एक्टिविटीज़ हम रोज़ करते हैं। तो जब जो एक्टिविटी हम रोज़ करते हैं, इसको हमेशा हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में बयान करना है। अब प्रैक्टिस की बात कैसे आ गई यहाँ पे, वो ये कि इन्हीं चीज़ों को आपने डेली प्रैक्टिस करना है। मैंने बोला 30 मिनट्स आर एम्पल। 30 मिनट्स अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना रोज़, डेफिनेटली यू विल हैव अ गुड आउटकम। तो पहली चीज़ है, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस को क्लियर करोगे, रिकॉर्ड योरसेल्फ विद द डेली रूटीन। आपको हमेशा हर रोज़ फॉर 10 to 15 डेज इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि मैं अपने आप को रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का तब तक पता ही नहीं चलेगा। ये एक सॉलिड प्रूफ होता है एक इंसान में, जब आप रिकॉर्ड करते हो। एक रिकॉर्डर आपको डाउनलोड करना है अपने इसमें मोबाइल फ़ोन में। इसके बाद रिकॉर्ड करो अपनी वॉइस को। पहले आप 1 मिनट तक बोल पाओगे, इसके बाद यही 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बनेंगे, और इसके बाद स्पॉट आउट योर मिस्टेक्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर बात करें। पहले एक टेंस को उठाओ, ठीक है, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा आपका। दूसरी बात यह है कि यू विल गेट ऑल द थिंग्स डन जस्ट विद इन सम मिनट्स। तो जैसे कि आपने यहाँ से रिकॉर्ड किया, पहली रिकॉर्डिंग जो आपने की वो 1 मिनट की हो गई, एंड इसी रिकॉर्डिंग को अगर वीडियो कर सकते हो, दैट वुड बी मोर बेटर। वो बेटर ही रहेगा, इससे भी कहीं ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप फॉर एग्जांपल वीडियो रिकॉर्ड करते हो, क्योंकि आप देखते हो अपनी लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप अपने लाइक जेस्चर्स देखते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान आपने रखना है। यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। पहले इन चीज़ों को समझो, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की मैंने बात करी है। इसके बाद दूसरे टेंस को उठाओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्या हम अभी कर रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, ठीक है। तो प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है और हर रोज़ आपको प्रैक्टिस करनी है। अब ये चीज़ें हैं, किसी इंसान को डर लगता है मोबाइल फ़ोन के साथ प्रैक्टिस करने में। ऐसा नहीं है, आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, कल, परसों, तरसों, सरसों, ये सारी चीज़ें जब आप करोगे ना, डेफिनेटली यू विल गेट रिड ऑफ, यू विल ओवरकम द प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम जो आपके साथ होती है, इसको आप दूर डेफिनेटली करोगे। नंबर 2 पॉइंट मैंने बोला कि सराउंड योरसेल्फ विद द एनवायरनमेंट। आपको एक अच्छे एनवायरनमेंट में बैठना है। हम इंस्टीट्यूशन ज्वाइन क्यों करते हैं? इंस्टीट्यूशन ज्वाइन ज़रूरी नहीं करने हैं व्हेन इट कम्स टू लर्निंग ए लैंग्वेज। आप जब लैंग्वेज लर्न करते हो ना, इसमें इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करना कोई ज़रूरी नहीं है। आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको वो मौका मिलता है, जो आपको आपके साथ वो माहौल बनता है, जो माहौल आप बाकी जगहों पे नहीं बना सकते। यू कैन नॉट क्रिएट सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जो कि आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। वहाँ पे आपको सर मेन लगाता है या बोलता है कि खाली इंग्लिश में बात करो, और वहाँ पे कोई हंसेगा भी नहीं आप पे, जो जिन चीज़ों का डर रहता है एक इंसान को कि अगर इसने ये किया, अगर इसने वो किया। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा ड्रैग हो जाए, क्योंकि क्या होता है, लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो बेस्ट वुड बी प्रैक्टिस फॉर 30 मिनट्स एटलीस्ट एवरी डे। आपको 30 मिनट तक की प्रैक्टिस हर रोज़ करनी है, और आपको एक इन्वायरमेंट बनाना है। एक अलग रूम में बैठो, वहाँ पे इंग्लिश कोट्स लगाओ, वहाँ पे क्या करो, इंग्लिश यूट्यूब पे जाके इंग्लिश को ज़्यादा सुनो, और इसके साथ साथ लेकिन एक चीज़ है, मेक श्योर यू आर नॉट गोना डू दिस थिंग, दैट इज़ प्लीज़ कंप्लीटली अवॉइड दिस थिंग, दैट इज़ I'm just telling you, that is really do not translate from your mother tongue to English.
क्या होता है, हम कितने इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सकते हैं? मुझे खुदा के लिए आप लोग बताओ कि हम कितने इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सकते हैं, दुनिया की पूरी इंग्लिश को ट्रांसलेट, क्योंकि हमारे पास सिचुएशंस कंप्लीटली चेंज होते हैं। इसको फिर क्या होता है, एक बच्चे को जब हम ट्रांसलेशन मेथड देते हैं, वो क्या करता है, वो उसी चीज़ को फिर दोहराता है हर एक जगह पे। इसको ये पता नहीं होता है कि इसको गिस्ट या जिसको हम इसेंस बोलें, इसको उस चीज़ का बिल्कुल पता भी नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा कि दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब हम इंग्लिश को लर्न करते हैं। एक मैंने बोला इन्वायरमेंट, दूसरा मैंने बोला कि प्रैक्टिस। मगर प्रैक्टिस से यू कैन नॉट जस्ट रन away from the practice, you cannot escape yourself from the practice हर रोज़ करनी है। कैसे करनी है? Record yourself every day, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि अपने आप को 10 से 20 से 30 मिनट तक की प्रैक्टिस कंटिन्यूस करो। इंग्लिश बोलो, जो भी जितनी भी गलतियां हो वो करो, जितने भी मिस्टेक्स है वो करो। आप बहुत सारे मिस्टेक्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोलना है मैं स्कूल जाता हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं गलत बोल रहा हूँ, टेंस मेरा गलत है, या मेरा जो वर्ब है वो कम्प्लीटली मैंने गलत इसमें पुट किया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक चीज़ है, आप अपने आप को ना फ़िलहाल स्टार्टिंग करते हो, जैसे कि छोटा बच्चा होता है, इसके इर्द गिर्द जो भी हम माहौल बनाते हैं वही माहौल में वो उसी चीज़ को वो अडॉप्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, इसको बोलते हैं हम कश्मीरी में रोज़ ना इसको टीच हम करते हैं, ना इसको ग्रामर का कोई रूल पढ़ाते हैं या कोई चीज़ भी नहीं इसके साथ करते। ऑटोमेटिकली एक ऑटो प्रोसेस में क्या होता है वो ये कि वो इन चीज़ों को सीख पाता है और वो रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। आपको भी एक बच्चा बनना है, क्योंकि जो चीज़ नहीं है उस चीज़ को आपने समझो कि अडॉप्ट करना ही करना है। वॉट एवर इज़ अराउंड इज़ कम्प्लीटली बाउंड टू इफेक्ट अस। जो चीज़ हमारे इर्द गिर्द है ये हम पे असर करती है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर गोइंग टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल and I have got many more contents to provide you in the future. And also, if you want to join my course, you are really interested with my course, online course, then you can just go to my website www.nextgenenglishclass.com, from where you will get to know more about me, my courses, my qualification, and everything you want to know. Thank you so much. Have a nice time. Bye bye.